Academy, a step towards the success. So dear students, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत इजी सा टॉपिक है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so in this video we are going to discuss these four properties of charges. Okay, so starting with the first one. Okay, so dear students, we know that in nature there are two types of charges present. First is the positive charge and second is the negative charge. Okay, so first properties of charges tells that the like charges repel and unlike charges attract. Okay, so this is the easiest property. So क्या मतलब है इसका देख लेते हैं. So अगर हमारे पास दो like या similar charges होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ओके, so if we are having two positive or two negative charges, so there will be a force of repulsion between the charge. So इसका मतलब ये हुआ, या तो अगर हम दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे, सो क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा बिटवीन द चार्जेस. और वहीं अगर हम दो अनलाइक चार्जेस को, मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास लाएंगे या क्लोज लाएंगे, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ attraction between the charges. Okay, so this is the first property and this is the easiest one. Okay, so I hope ये आपको clear हो गया होगा. Now we are going to see the second property, that is the additivity of charges. Okay, so let's see what is the meaning of additivity of charges. Now dear students, we are going to see the second property of charges, that is the additivity of charges. Okay, so the additivity of charges means the net charge on a body, okay, is the algebraic sum of the individual charges. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं. So dear students, let us assume we are having a body. ठीक है, हमारे पास एक बॉडी हमने ये रिप्रेजेंट किया है. ओके, सो लेट अस अज्यूम इररेगुलर शेप हमने यहाँ पे लिया है. ठीक है, एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑन दिस बॉडी देयर आर सम चार्जेस प्रेजेंट. ओके, और सम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो यहाँ पे हमने प्लस Q1 चार्ज लिया है. ओके, मींस Q1 चार्ज है जिसका नेचर पॉजिटिव है, Q2 चार्ज है जिसका नेचर नेगेटिव है. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास Q3 पॉजिटिव चार्ज है और Q4 यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है. ओके, सो अगर हम इस टोटल बॉडी की नेट चार्ज की बात करें, सो जो नेट चार्ज इस बॉडी की होगी वो होगी इस algebraic sum of the charges. So dear students, यहाँ पे algebraic का मतलब होता है with sign. ओके, सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर निगेटिव चार्जेस है तो उसे हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो द नेट चार्ज और टोटल चार्ज ऑफ ऑन दिस बॉडी, इट इज गिवन बाय Q, कैपिटल Q. जो नेट चार्ज है उसको हमने कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है एंड इट इज इक्वल टू Q1. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने साइन इंडिकेट नहीं किया तो वो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव नेचर का है. ओके, सो Q1 माइनस Q2. ओके, बिकॉज Q2 चार्ज का नेचर वो निगेटिव है, प्लस Q3 and minus Q4. Okay, so again I am concluding, according to additivity of charges means the net charge on the body or total charge on the body is the algebraic sum of the individual charges. Okay, so this is the meaning of second property. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा. Now we are going to see the third property, that is the conservation of charges. Okay, so let's see. Now dear students, we are going to see the third property of charges, that is conservation of charges. Okay, so let's see what is the meaning of this. Okay,
So according to conservation of charges, the charges can neither be created nor destroyed. Okay, it can only be transferred from one body to another body. Okay, or in other words, the net charges in an isolated system remains conserved. Okay, so dear students, देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है सिंपल टर्म्स में. Okay, so according to थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. चार्जेस को ना तो हम डेवलप कर सकते हैं, ना तो हम बना सकते हैं, ना ही इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, चार्जेस का केवल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस केवल ट्रांसफर हो सकते हैं. ओके, ना तो हम चार्जेस का डेवलप कर सकते हैं, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं ओके कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर हैविंग वन ग्लास रॉड एंड वन सिल्क क्लॉथ. ओके, एक ग्लास रॉड है और एक हमारा सिल्क का कपड़ा है. ओके, सो इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल. दोनों स्टार्टिंग में या बिफोर रबिंग दोनों न्यूट्रल है. ओके, सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन बोथ बॉडीज. ओके, बट डियर स्टूडेंट, एज सून एज वी रब्ड दिस ग्लास रॉड बाय दिस सिल्क क्लॉथ. ओके, जब हम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के कपड़े से जब हम रब करेंगे, ओके, सो बिकॉज ऑफ रबिंग और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन से, ओके, some electrons gets transferred from this glass rod to this silk cloth. okay, so जब हमने रब किया डियर स्टूडेंट्स इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के कपड़े से, देन एक्चुअली क्या होगा, इसमें कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे इस सिल्क के क्लॉथ में. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां से इस ग्लास रॉड से 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके माइग्रेट करके इस सिल्क क्लॉथ पे जाकर के वो एक्यूमुलेट या इकट्ठे हो गए. ओके, सो हियर actually what is happening here, this glass rod and this silk cloth, okay, they are making a system, an isolated system. so यहाँ पे ये जो glass rod है और ये silk यहाँ पे एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे. ओके, सो तो हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा. मींस यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर के इसमें जाकर के एक्यूमुलेट हो गए. ओके, सो जो हमारा नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओके, यहां से अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ही यहां पे जाकर के वो एक्यूमुलेट होंगे. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि चार्जेस का यहाँ पे केवल ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे चार्जेस डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमको पॉजिटिव चार्जेस लग रहा है लेकिन यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्जेस डेवलप नहीं किया है. वो इसीलिए पॉजिटिव यहाँ पे चार्जेस फॉर्म हुआ या डेवलप हुआ बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हो गए. ओके, सो आई होप आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी. वी आर मूविंग टू द फोर्थ एंड फाइनल but most important properties of charges, that is the quantization of charges. okay, so dear students, इस प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छे से समझिएगा. बिल्कुल ये बिकॉज ये प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी the quantization of charges. okay, so this is the most important and a little bit different property. okay, so before defining the quantization of charges हम कुछ example देख लेते हैं. okay, so dear student, if I ask you please give me 2.3 pen, okay, or 5.7 pen. okay,
और 7.8 बुक्स और 2.9 कॉपीज. सो लाइक दिस. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत ऑड या अजीब लग रहा होगा. ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपसे 2 पॉइंट है ना, या तो मुझे आप 3 पेंसिल दोगे या 4 पेंसिल दोगे, या फिर आप मुझे 3 बुक्स दोगे या 5 बुक्स दोगे या 9 कॉपीज दोगे, लाइक दिस. ओके, सो आप मुझे कंप्लीट नंबर में दोगे, ठीक है ना. जनरली यूजुअली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं. ओके, सो नाउ why I have given this example? Okay, because to understand the concept of quantization, okay, ये example बहुत जरूरी है. Okay, now इस example को हम correlate करेंगे quantization of charges से. Okay, according to quantization of charges, the net charge on a body is an integral multiple of elementary charge. Okay, so let's understand what is the meaning of this. Where n is equal to plus minus 1 or plus minus 2 plus minus 3 and so on. Okay, so the net charge on a body is equal to an integral multiple of elementary or basic charge particle E. Dear student, if we are having a body, okay, so I have formed an irregular body. Okay, so इस body पे या तो आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, okay, या तो आपके 27 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 59 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. okay, सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे होंगे या टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा एक इंटीग्रल नंबर मीन्स एक आपका डिस्क्रीट नंबर होंगे, डिस्क्रीट वैल्यू होगी, एक कंप्लीट नंबर होंगे. या तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस. ओके, भी हम ये नहीं बोल सकते कि इस बॉडी में आपका 20.5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आपका 9.7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, वी कैन नेवर से, बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा एक कंप्लीट नंबर में होंगे. ओके, एक इंटीजर वैल्यू में होंगे. ओके, और हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, अगर ये बॉडी अगर किसी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है तो अगेन वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में करेगा, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, लाइक दिस. और सिमिलरली अगर ये गेन भी करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से लेगा भी तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा. ओके, सपोज आपका 26 इलेक्ट्रॉन और या फिर 39 इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज an integral multiple of elementary charge. Okay, so इसको मैथमेटिकली हम Q is equal to n E से रिप्रेजेंट करते हैं, where n is equal to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. Okay, so यहाँ पे प्लस आपका पॉजिटिव चार्जेस के लिए है और हम निगेटिव साइन यूज करते हैं निगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो आई थिंक आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मीनिंग समझ आ गया होगा, बिल्कुल, बिकॉज यही एक प्रॉपर्टी है जो काफी डिफरेंट है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.